اعلیٰ برز ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ سڑکو این12 علاقے میں موجود کچرا ٹرانسفر سینٹر کو بند کرنے کے مطالبے پر سابق MP اور MIM کے کارپوریٹرز نے کیا زوردار احتجاج۔ میئر کے سمجھانے کے باوجود مظاہرہ کرنے پر مظاہرین کے خلاف 353 کے تحت کارروائی کا میئر نے دیا انتباہ۔ گوندوگیری کو بڑھاوا دینے والے 39 اراکین اسمبلی کے خلاف CPIM نے کھول دیا مورچہ۔ کرانتی چوک علاقے میں کیا زوردار مظاہرہ اور متعلقہ MLA سے کیا استعفے کا مطالبہ۔ جالنہ میونسپل جنرل باڈی کی میٹنگ میں ہوا خوب ہنگامہ۔ BJP کے کارپوریٹر اکشے گورنٹیال اور شیو سینا کے کملیش کھرے آئے آمنے سامنے۔ معاملہ رفع دفع کرنے ڈپٹی میئر کو چھوڑنا پڑا ڈائس۔ میئر میٹنگ ملتوی کرنے پر ہو گئی مجبور۔ اور ایک قدم آگے مہم کے تحت آج میونسپل کارپوریشن کے سینٹرل پرائمری اسکول نمبر 1 میں آنگن واڑی کے طلباء کو دیا گیا اول جماعت میں داخلہ۔ اطراف کی بستیوں کے ساکنان بھی اپنے بچوں کا یہاں ایڈمیشن کرنے لگے ہیں ضد۔ انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ۔ خبریں تفصیل سے۔ میئر سمیر راجورکر کے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز نے گزشتہ شام سڑکو این12 میں موجود کچرا ٹرانسفر سینٹر بند کرنے کے مطالبے پر وہاں زوردار احتجاج کیا۔ یہ احتجاج سابق MP امتیاز جلیل کی قیادت میں کیا گیا۔ گزشتہ روز سڑکو این12 علاقے میں واقع کچرا ٹرانسفر اسٹیشن کو بند کرنے کے مطالبے پر MIM کی جانب سے احتجاج کی وارننگ دیے جانے کے بعد میئر سمیر راجورکر نے واضح کیا کہ یہ کچرا ڈپو نہیں بلکہ صرف ایک ٹرانسفر اسٹیشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شہر کی ترقی کا ایک حصہ ہے اور ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف دفعہ 353 کے تحت کارروائی کرنے کی ہدایت انتظامیہ کو دے دی گئی ہے۔ میئر نے بتایا کہ شہر میں گھن کچرا انتظامیہ محکمے کی جانب سے کچرا جمع کرنے کے بعد گیلا اور سوکھا کچرا الگ الگ کر کے ڈپو تک پہنچانے کے لیے کل 9 ٹرانسفر اسٹیشن شہر میں بنائے گئے ہیں، جن میں سے فی الحال 5 پر کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہر علاقے میں اس طرح مخالفت شروع ہو گئی تو ہر کارپوریٹر اپنے علاقے سے اسٹیشن ہٹانے کا مطالبہ کرے گا، جس سے ترقیاتی کام متاثر ہوں گے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان ٹرانسفر اسٹیشنز میں گھنٹہ گاڑی سے آنے والے کچرے کو ویکیوم سسٹم کے ذریعے ڈپو تک بھیجا جاتا ہے، جس سے عمل آسان ہو جاتا ہے اور گاڑیوں کی روزانہ صفائی سے بدبو بھی نہیں پھیلتی۔ میئر نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن لیڈر سمیر ساجد بلڈر نے N12 کے اسٹیشن کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا، مگر انہیں سمجھایا گیا ہے کہ یہ کئی سالوں سے موجود ہے اور شہر کے کچرے کے مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے۔ اس کے باوجود اگر مخالفت جاری رہی تو متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر ایک علاقے کی بات مان لی گئی تو دوسرے علاقے بھی یہی مطالبہ کریں گے، یہاں تک کہ ڈپٹی میئر راجندر جنجاڑ بھی شیواجی نگر کے اسٹیشن کو منتقل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس طرح ہر کوئی اپنے علاقے میں اسٹیشن نہیں چاہتا، جس سے ترقیاتی کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میئر نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان کے اپنے سمرتھ نگر علاقے میں بھی ٹرانسفر اسٹیشن ہے اور اگر وہ بھی اس کی مخالفت کریں تو ان پر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ فی الحال سڑکو این12 شیواجی نگر، سمرتھ نگر، رام نگر اور مجنو ہل علاقوں میں ٹرانسفر اسٹیشنز جاری ہیں اور جلد ہی دیگر 4 مقامات پر بھی کام شروع کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف میئر سمیر راجورکر کے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود MIM کے کارپوریٹرز نے سابق رکن پارلیمنٹ اور پارٹی کے ریاستی صدر امتیاز جلیل کی قیادت میں سڑکو این12 علاقے میں زوردار احتجاج کیا۔ سابق MP امتیاز جلیل کا کہنا ہے کہ اس اسٹیشن کے قریب 2 مندر اور سامنے کینسر اسپتال موجود ہے، جس کی وجہ سے مقامی شہریان، مریضوں اور عقیدت مندوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
اسی لیے اس کچرا ڈپو کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ شام 5:30 بجے کے قریب امتیاز جلیل، اپوزیشن لیڈر سمیر ساجد بلڈر، گروپ لیڈر حاجی شیر خان اور دیگر کارپوریٹرز موقع پر پہنچے اور وہاں زوردار احتجاج کیا۔ بعد میں گھن کچرا انتظامیہ کے سربراہ نند کشور بھومبے نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے وہاں پولیس کا سخت بندوبست تھا۔ دیکھیے، یہ N12 کا جو کچرا ڈپو ہے یہاں پر، یہ مہانگر پالیکا کی جگہ ہے اور بہت ہی پرائم لینڈ ہے، اور یہ پرائم لینڈ یہاں پر مہانگر پالیکا نے وہ ٹھیکیدار کو کیوں دی، یہ سب سے پہلا سوال ہے۔ یہاں پر گارڈن بنا سکتے ہیں، پارک بنا سکتے ہیں، اسکول بنا سکتے ہیں، ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، مہانگر پالیکا اپنی نئی بلڈنگ بنانا چاہ رہی ہے، وہ بلڈنگ یہاں پر بنا سکتے ہیں، لیکن ٹھیکیدار کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ جگہ کچرے کے لیے یہاں پر چھوڑ دیا ہے۔ ہم مہانگر پالیکا سے ایک سوال کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ پلان جو آیا ہے شہر کا، اس میں کیا یہ کچرے کے لیے رکھا گیا ہے؟ اگر کچرے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے تو پھر ٹھیکیدار کو فائدہ کیوں پہنچایا جا رہا ہے؟ اور اتنی گندی بدبو یہاں پر آتی ہے کہ لوگ صبح شام کھڑکیاں اور دروازے بند کرنا پڑتا ہے۔ میں اس شہر کے تمام ہندو دھرم کے ٹھیکیداروں سے بھی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہی کچرے ڈپو کو لگ کر ہے تو ایک ہنومان مندر ہے، بڑا ہنومان مندر ہے، اسی کے بالکل بازو جو ہے وہ دت مندر ہے، ایک مندر یہاں پر ہے، ایک سماج کلیان کا آفس یہاں پر آ رہا ہے اس میں۔ تو اتنے سارے مندریں ہونے کے باوجود آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بھگوان کا آپ کا گھر ہے، اس کے بازو آپ کچرے کے دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کر کے اس میں؟ تو ہم نے یہ فیصلہ کیے ہے کہ کسی بھی حالت کے اندر یہ کچرا ڈپو یہاں پر نہیں رہنا چاہیے۔ ہم نے یہ پورے سسٹمز دیکھے ہوئے ہیں کہ کیسا کام کرتے ہیں۔ پہلے دکھانے کے لیے تو یہ بہت اچھی باتیں کریں گے، لیکن بعد میں یہاں کے لوگوں کو جو تکلیف ہوں گی ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ مہانگر پالیکا کو کیا نرنے لینا ہے وہ لے لیں، ہم نے اپنا نرنے لے لیا ہے کہ یہاں سے یہ ہٹنا چاہیے۔ آپ کو بھی معلوم اچھی طریقے سے کیا قدم رہے گا کر کے اس میں، سب چیز ہماری زبان سے ہی کیوں کھلوانا چاہ رہے ہو اس میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر اچھے طریقے سے لوگوں کے اگر ہت کے اندر اگر پرشاسن صرف ایک ٹھیکیدار کو خوش کرنے کے لیے اپنے رویے کے اوپر اڑا ہوا ہے، تو ہمارا رویہ کیا رہے گا وہ بھی ہم صاف طریقے سے پرشاسن کو بتا دیے اس میں، پھر دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا آگے۔ دیکھیے، اگر آلٹرنیٹ اگر ڈھونڈنا چاہے، اور یہ مہانگر پالیکا کی ذمہ داری نہیں ہے، مہانگر پالیکا ٹھیکیدار کو کئی 100 کروڑ روپئے دے رہی ہے، کئی 100 کروڑ روپئے۔ نیا ٹینڈر جو پاس ہوا ہے اس کو اور بڑھا کے دے دیجیے گا تاکہ نیتا جی کا بھی کمیشن اور بڑھ جائے گا اس میں۔ لیکن وہ مہانگر پالیکا کے ٹھیکیدار کی ذمہ داری ہے کہ انہیں پرائیویٹ لینڈ، مہانگر پالیکا کے پرائم لینڈ یہاں پہ ایک تم نے جگہ دے دیے ہے سینٹرل ناکے کے اوپر، پھر سے ہے تو وہاں پہ بھی بول رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کچرا لگائیں گے کر کے۔ ہم نے وہاں پہ سینٹرل ناکے کے اوپر اتنا اچھا ایک پلان اور پرپوزل تیار کر کے رکھے ہوئے ہے کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ، یعنی کہ ہم صرف کچروں کے اندر رہے، صبح دوپہر شام یہاں پہ صرف کچروں کی گاڑیاں ہم دیکھتے رہے کر کے اس میں، تو یہ بند بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے ہرسول کے تعلق سے بھی ہم نے بتائے تھے، ہم نے سینٹرل ناکے کے بارے میں بھی بتائے ہیں، شروعات یہاں سے کیے ہیں، آگے اور کرتے رہیں گے۔ دیکھیے، اسی کے بالکل بازو مہانگر پالیکا نے 2 کروڑ روپیہ خرچ کر کے ایک بہترین گارڈن بنائی۔ ہم بھی بڑے خوش ہو رہے تھے کہ بہترین گارڈن بن گیا۔ ٹھیکیدار کو صرف فائدہ پہنچانے کے لیے وہ ٹینڈر پاس کیا گیا تھا۔ جیسے ہی گارڈن بنا تو مہانگر پالیکا نے اس کے گیٹ کے اوپر اتنا بڑا لاک لگا دی۔ ہم نے پوچھا لاک کیوں لگائے؟ تو بولے پنچھی آ رہے ہیں کر کے، یہاں پہ پنچھیاں آتے ہیں، وہ پنچھیاں آنے کی وجہ سے بولے لوگ اگر جائیں گے گارڈن میں تو آپ کو بعد میں پتا چلا کہ یہ پنچھیاں آنے والے ہیں کر کے، آپ کو ابھی پتا چلا ہے، ٹھیکہ دینے سے پہلے آپ کو پتا نہیں چلا تھا کہ یہ پنچھیاں آ رہے ہیں کر کے۔ دیکھیے، یہ سینسیٹیو ایشو ہے اور اس کو سب کے ساتھ چرچا کر کے ہے تو اس کے اوپر فیصلہ۔ اگر آپ کا رویہ جو ہے وہ صرف ٹھیکیداروں کو فائدہ پہنچانے کا ہے تو کبھی بھی مطلب یہ ہے تو اس کا کوئی ایمیکیبل سولوشن نہیں نکلے گا۔ ہر وقت جو ہے ہمارا جنتا کا کچھ الگ سٹینڈ رہے گا اور وہاں پر اے سی میں کیبن میں بیٹھے ہوئے ادھیکاریوں کا ایک الگ وہ رہے گا اس میں۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے لیے بی جے پی کوٹے سے 5 کو-آپ ممبران کے لیے 15 امیدواروں کے درمیان کانٹے کی ٹکر دکھائی دے رہی ہے اور ان امیدواروں نے یہ عہدہ پانے کے لیے لابنگ شروع کر دی ہے۔ بی جے پی کے حصے میں آنے والی 5 نشستوں کے لیے تقریباً 15 امیدواروں کے نام حتمی فہرست میں سامنے آئے ہیں، جس کے بعد پارٹی کے اندر سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اور امیدواروں کے درمیان کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مختلف لیڈروں کے حامیوں کی جانب سے بھرپور لابنگ جاری ہے۔
रियासती वजीर अतुल सावे समेत दीगर सीनियर रहनुमा भी अपने अपने हामियों को मौका दिलाने के लिए सरगर्म होने की बात सामने आ रही है। दरी असना इस अमल में वफादार कारकुनों को नज़रअंदाज किए जाने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इंतखाबात के दौरान ज़ात और इलाकाई तवाज़ुन कैसे बरकरार रखा जाएगा, इस पर सबकी नज़रें जमी हुई हैं। इस तमाम पस मंज़र में हतमी फ़ैसला पार्टी क़यादत की जानिब से किया जाएगा और किसको मौका मिलता है, इस पर सियासी हलकों की गहरी नज़र है। जालना ज़िले में कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी से एमएलए अर्जुन खोदकर सख्त नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। इस ज़िमन में उन्होंने सप्लाई डिपार्टमेंट के अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की और उन्हें हिदायत दी कि कमर्शियल गैस की कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसा जाए। ज़राए का कहना है कि जालना शहर समेत पूरे ज़िले में कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमतों में बड़ी बेज़ाब्तगियाँ देखने को मिल रही हैं। सरकारी कीमत 2000 रुपये होने के बावजूद यही सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 6000 रुपये तक फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से होटल का कारोबार करने वाले अफराद में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। इस संगीन मामले का नोटिस लेते हुए एमएलए अर्जुन खोदकर ने डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर सविता चौधरी और दीगर अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में गैस सप्लाई और तकसीम के निज़ाम में शफाफियत लाने की वाज़ेह हिदायत दी गई। इस मौके पर अर्जुन खोदकर ने सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि जालना ज़िले में गैस सिलेंडर्स की मसनवी किल्लत पैदा करके कुछ लोग उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। ये किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मीटिंग में जालना ज़िले के कई होटल कारोबारी अफराद भी मौजूद थे, जिन्होंने गैस की दस्तयाबी से मुताल्लिक अपनी मुश्किलात पेश की और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा किया। मूळ मुद्दा त्यांचा असा होता की आम्हाला जर गॅसची टंचाई आहे असं म्हणतात, मग चढ्या भावाने गॅस गावात का मिळतो? 2000 रुपयाचं सिलेंडर 7000ला मिळतं, 6000ला मिळतं, मग 6000 रुपये दिल्यानंतर गॅस कसा मिळतो? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे। त्यामुळं मी स्वतः DSOला सूचना केल्या की आवक आणि जावक येतो गॅस किती आणि जातो कुठे, कोणाकडे जातो, एकाच बाजूने जात नाही का किंवा काळ्या बाजारात जातो, याची तपासणी DSOने केली पाहिजे। DSO उद्यापासून ती तपासणी करतील, येणारा गॅस किती आहे आणि जाणारा कुठं आहे, याच्याकडे किती, हॉटेलवाल्याकडे किती आहे, ज्यांच्याकडं मागणी आहे त्या मागणीदाराला जातो का ब्लॅक मनी कमावणाऱ्या लोकांकडे जातो, या संदर्भात त्या संपूर्ण सूचना मी DSO ने या ठिकाणी दिलेली आहे। भोंदूगिरी को बढ़ावा देने वाले 39 MLAs के खिलाफ CPI-M ने रियासतगीर सतह पर तहरीक शुरू की है, जिसके तहत गुज़िश्ता शाम क्रांति चौक इलाके में भी ज़ोरदार एहतजाज किया गया और इन तमाम मुतल्लिक़ा MLAs से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया। नाज़रीन, इन दिनों खुद साख्ता बाबा अशोक खरात का एक वीडियो मंजर आम पर आया था, जिसके बाद सोशल मीडिया और मीडिया में ये ख़बर मौज़ूए बहस बनी हुई है। इसी पस मंज़र में 39 अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ रियासत भर में नाराज़गी पाई जा रही है। इन अरकान से फौरी इस्तीफ़ा लेने के मुतालबे को लेकर CPI-M की जानिब से रियासतगीर एहतजाज शुरू किया गया है। औरंगाबाद शहर में भी इस एहतजाज की झलक देखने को मिली। गुज़िश्ता रोज़ क्रांति चौक में CPI-M की जानिब से ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। भोंदूगिरी को फ़रोग़ देने वाले अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया। मुज़ाहिरीन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद गुस्से का इजहार किया और कहा कि ऐसे मामलात पर फौरी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की सरगर्मियों पर रोक लगाई जा सके। एहतजाज के दौरान क्रांति चौक इलाका नारों से गूंज उठा था और CPI-M कारकुनान ने सख्त अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। या संतांच्या भूमीमध्ये महाराष्ट्राच्या पुरोगामी विचाराचा महाराष्ट्र हा संविधानावर चालणारा महाराष्ट्र भारत देश आणि ह्या संविधानावर आधारित असलेले सगळे संसदीय सभासद ह्या सभासदांना जर भोंदूगिरीच्या बाबाच्या याच्यावर विश्वास ठेवून जर कधी राज्य करायचं असेल तर देशाने कोणावर लक्ष केंद्रित करावं, कुणाकडे आशावादी बघावं।
जर ह्या पद्धतीने जर असा देश चालत असेल आणि ह्या पद्धतीने जर हे असं होत असेल बंधुगिरीला खतपाणी घातल्या जात असेल तर आमच्या पार्टीच्या वतीने संघटनेच्या वतीने या 39 आमदाराचे ताबडतोब राजीनामे झाले पाहिजे. हे सरकार पायउतार झालं पाहिजे. मला हे तुमच्या माध्यमातून सांगायचं आहे. जे काही नाशिकमध्ये प्रकरण घडलं जात उठवण्याचं, महिलांचं जे लैंगिक शोषण झालेलं आहे, अशोक खरात नावाच्या भोंदू महाराजांनी केलेलं आहे, त्याच्या विरोधात कडक कारवाई झाली पाहिजे. परंतु याच्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये असं दिसतंय किमान 39 आमदार त्याला भेटलेले. भारतातले गृहमंत्री अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे या लोकांचा सुद्धा त्याच्यामध्ये संपर्क असल्यामुळं मला वाटतं की पाहिजे तशी कडक कारवाई करतील अशी शंका आहे त्याच्याबद्दल. हर साल की तरह इस साल भी विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर ऑल पार्टीज़ जयंती फेस्टिवल कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ समाजी, सकाफ़ती और फलाही प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं. ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई. कमेटी के सरप्रस्त बाबूराव कदम, सदर नवीन सिंह मनमोहन सिंह ओबेरॉय और कारगुजार सदर किशोर थोरात ने सहाफ़ियों को बताया कि तकरीबन 40 साल कबल ऑल पार्टीज़ फेस्टिवल कमेटी का क़याम अमल में आया था और तब से आज तक हर साल जयंती के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाते हैं. ज़िम्मेदारान के मुताबिक 9 अप्रैल को शाम 7 बजे ज़िले के सरप्रस्त वज़ीर संजय शिरसाट के हाथों फेस्टिवल कमेटी के दफ्तर का इफ्तिताह किया जाएगा, जबकि 10 अप्रैल को बुद्ध लेनी में भंते जियों के लिए ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया है. इसी तरह 12 अप्रैल को मेगा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद होगा. 13 अप्रैल को रात 12 बजे भड़कल गेट पर ज़ोरदार आतिशबाजी की जाएगी और केक काटा जाएगा. 14 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे अभिवादन सभा होगी, जबकि इसी दिन शाम 5 बजे उस्मानपुरा में वाक़े गुरुद्वारा के सामने मिठाई और शरबत तकसीम किया जाएगा. इसी रोज़ शाम 6:30 बजे क्रांति चौक से जुलूस का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें पहली गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा. कमेटी के ज़िम्मेदारान ने तमाम शहरियान से अपील की है कि वो इन तमाम तकारीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तकबालिया सदर डॉक्टर अफजल अजमल खान, नायब सदर मिलिंद शेड़के, दौलत खरात, इकबाल सिंह गिल, रशीद मामू, ख्वाजा शरफुद्दीन, बालकृष्ण एंगड़े और दीगर कमेटी के अराकीन व होद्देदारान भी मौजूद थे. दुसरं आमचं म्हणणं असं होतं की यावर्षी डीजे, मागच्या वर्षी जे मिरवणुकीमध्ये प्रचंड प्रमाणात डीजे होते आणि स्टेजवरचे डीजे, रस्त्यावरचे डीजे, तर त्यावेळेला अनेक कार्यकर्त्यांना, लहान मुलांना, अबालवृद्धांना त्या ठिकाणी त्रास झाला, वयोवृद्ध व्यक्तींना देखील त्रास झाला आणि बरेचसे लोक परत गेले. परंतु मिरवणूक पाहण्यासाठी लाखो लोक त्या रस्त्यावर येत असतात आणि म्हणून आम्ही मिरवणुकीच्यातील मंडळांना आम्ही विनंती करणार आहे, वास्तविक अरुण बोर्डे आणि आम्ही सर्व बसून आणखी एक मीटिंग करू आणि कमी आवाजाचे डीजे, जे साऊंड सिस्टीम जी याची डीजे असतील, आता परवा सोलापूरला देखील तोच निर्णय झाला की कमी आवाजातील डीजे, कर्कश आवाजातील डीजे या ठिकाणी लावले जाऊ नये. कमी आवाजात साऊंड असेल, बँड असेल, पारंपरिक वाद्य असतील तर ते वाद्य जास्तीत जास्त मिरवणुकीमध्ये त्याचा उपयोग करावा आणि जनतेला त्रास होणार नाही आणि याची काळजी मात्र आम्ही निश्चित घेणार आहोत. सर्वपक्षीय जयंती उत्सव समिति का कार्यालय का उद्घाटन रखा गया है. 10 तारीख को हर साल की तरह पहला कार्यक्रम भंते जी को गौतम बुद्ध जी और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो लेनी है इधर, तो भंते जी को भोजन दान करने का कार्यक्रम रख के जयंती की शुरुआत हर साल की तरह होती है. उसी तरीके से की जाएंगी. 11 तारीख के दिन महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को अभिवादन करते हुए ये काम शुरू होगा. 12 तारीख को सर्वपक्षीय के कार्यालय पे रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है. 13 तारीख रात को भड़कल गेट पर भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम हर साल के तरीके केक काट के किया जाएगा. 14 तारीख सुबह 9 बजे अभिवादन सभा का कार्यक्रम रखा गया है. 14 तारीख शाम को 5 बजे सर्वपक्षीय जयंती उत्सव समिति की तरफ से गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के उधर मिठाई वाटप, पुलाव का वाटप और शरबत वाटप, ये जितने लोग वहाँ से पूरी रात तक जाएंगे उतने लोगों का इंतज़ाम वहाँ पर रखा गया है. 14 तारीख शाम को 6:30 बजे जयंती में पुलिस कमिश्नर आयुक्त साहब के माध्यम से साथ में मान्यवरों को लेके झंडा बता के मिरवणूक की शुरुआत की जाएंगी. और 16 तारीख के दिन संगीत रजनी का कार्यक्रम उस्मानपुरा भाजीभाई पुतले चौक पर रखा गया है.
ये सारे कार्यक्रम और जैसे ही प्रबंधकारों का समय मिलेगा बड़ी व्याख्यान माला 14 तारीख के बाद रखी जाएगी, चाहे वो 20 तारीख का मिलो या 22 तारीख, उस हिसाब से रखी जाएंगी। आज शहर में आइंदा 13 और 14 अप्रैल को मिलिट्री सिविल फ्यूजन कॉन्क्लेव मुनक़िद किया जा रहा है, ये इत्तला ऑर्गेनाइजर्स ने दी। औरंगाबाद शहर में 13 और 14 अप्रैल को मिलिट्री सिविल फ्यूजन कॉन्क्लेव 2026 का इनेकाद किया जा रहा है। दिफाई अफवाज, सनत, तालीमी इदारों और स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने वाला ये अहम इक़दाम साबित होगा, जिसका मकसद जिद्दत और कौमी खिदमत को नई सिमत देना है। गादिया ग्रुप, सिविल डिफेंस और मुख्तलिफ इदारों के मुश्तरका ताउन से मुनक़िद होने वाले इस कॉन्क्लेव में मुल्क के दिफाई शोबे से वाबस्ता अफसरान, सनतकार, MSMEs, स्टार्टअप्स और तालीमी इदारों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इस इक़दाम का बुनियादी मकसद दिफाई अफवाज और शहरी शोबे के दरमियान हम आहंगी पैदा करना है, ताकि मेक इन इंडिया, उत्तम निर्भर भारत और विकसित भारत जैसे तसव्वुरात को मज़ीद मजबूती मिल सके। इसमें नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, तहक़ीक़ व तरक्की और सनती मौक़े पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ तकनीकी सेशंस, सनती नुमाइश, नेटवर्किंग सेशंस और स्टार्टअप्स के लिए खुसूसी प्लेटफॉर्म भी फराहम करवाए जाएंगे। इसके अलावा दिफाई शोबे के तजुर्बेकार अफसरान की रहनुमाई भी हासिल रहेगी। इस कॉन्क्लेव में AK सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की खुसूसी शिरकत होगी, जो दिफाई शोबे में अपने तजुर्बात और रहनुमाई फराहम करेंगे। इसके साथ ही इस इक़दाम के चीफ कोऑर्डिनेटर वैदान शरीश गादिया ने इस प्रोग्राम के मकासद को वाज़ेह करते हुए कहा कि ये इक़दाम सनत और दिफाई शोबे के लिए नहायत मुफीद साबित होगा। उसको ब्रिज करने की पहल करना चाहते हैं, जहाँ पर हम सभी तरीके की इंडस्ट्री को, चाहे वो MSMEs हो, चाहे स्टार्टअप्स हो, चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो, और आर्म फोर्सेस को साथ लाने की पहल कर रहे हैं, ताकि वो एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को समझ सकें और उस रिक्वायरमेंट को समझ के पूरा करने की कोशिश कर सकें। वो इस कॉन्क्लेव का मेन मकसद है जी। तो इस कॉन्क्लेव में आर्म फोर्सेस के अधिकारी, सीनियर अधिकारी, एकेडमिया के, यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर, डिग्नेटरीज, यहाँ के सिविल के बड़े अधिकारी, संस्थान जैसे कि हैं मैजिक, MIDC, इनके बड़े अधिकारी और सभी प्रमुख क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों को हमने आमंत्रित किया है, ताकि वो इस कॉन्क्लेव में आए और उसमें आके सम्मिलित हो सके। शिऊर में मौजूद लैंड रिकॉर्ड दफ्तर के अफसरान और मुलाजमीन के मनमाने कारोबार के सबब यहाँ मुख्तलिफ कामों से आने वाले शहरियान को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। शिऊर लैंड रिकॉर्ड दफ्तर के दायरे कार में धुंदलगांव, शिऊर, सफियाबाद वाड़ी, पालखड़ी, लासूर गांव, अमानतपुर वाड़ी, संजरपुर वाड़ी, जुम्मनवाड़ी, परसोड़ा, लोनी बुजुर्ग, शिवराय, बैंडवाड़ी, रघुनाथपुर वाड़ी, अल्लाहपुर वाड़ी, हाजीपुर वाड़ी, वाकला समेत दीगर 12 देहात शामिल हैं। इन देहातों के शहरियान ज़मीन के रिकॉर्ड, विरासती कार्रवाई, फेरफार, पैमाइश वगैरह जैसे कामों के लिए शिऊर में मौजूद लैंड रिकॉर्ड दफ्तर का रुख करते हैं, लेकिन दफ्तर खुलने का सरकारी वक्त सुबह 10 बजे होने के बावजूद लैंड रिकॉर्ड अफसरान औरंगाबाद से अपनी मर्जी के मुताबिक आते और जाते हैं, जिसकी वजह से दफ्तरी औकात गैर यकीनी हो गए हैं और शहरियान को बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में BJP के कारपोरेटर अक्षय गोरंटियाल और शिवसेना के कारपोरेटर कमलेश खरे के दरमियान जमकर तू मैं हो गई और मामला यहां तक पहुंच गया कि डिप्टी मेयर को डाइस से उतरकर मामला रफा दफा करना पड़ा और मेयर को मीटिंग मुलतवी करनी पड़ी। नाजरीन, लोकल बॉडीज़ की जनरल बॉडी मीटिंगों में अवामी नुमाइंदों के दरमियान नज़रियाती इख्तिलाफ होना एक आम बात है, लेकिन कुछ मामलात पर ये लोग आमने सामने आ जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या जालना शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में गुज़िश्ता जनरल बॉडी मीटिंग में पेश आया, जिसमें फुले मार्केट के मसले पर BJP के कारपोरेटर अक्षय गोरंटियाल और शिवसेना के कारपोरेटर कमलेश खरे के दरमियान ज़बरदस्त ज़बानी झड़प हो गई। दोनों के दरमियान तकरार इस हद तक बढ़ गई कि डिप्टी मेयर राजेश राउत को मुदाखलत करके मामला सुलझाना पड़ा और मेयर ने कुछ वक्त के लिए जनरल बॉडी मीटिंग मुलतवी कर दी।
एक कदम आगे नामी मुहिम के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा में आज आंगनवाड़ी के 102 तलबा को पहली जमात में दाखिला दिया गया। इस तकरीब में म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर भारत तीनगोटे, प्रोग्रामिंग ऑफिसर नयानदेव सांगड़े और मकामी कारपोरेटर उसामा अब्दुल कदीर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जिनका स्कूल की हेडमिस्ट्रेस रईसा बेगम अयूब खान के हाथों पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। म्यूनसिपल इंतज़ामिया और स्कूल इंतज़ामिया की कोशिशों के बास आवाम में अपने बच्चों को म्यूनसिपल स्कूलों में दाखिल करवाने का रुझान बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आज स्कूल में वालिदैन की भीड़ देखने को मिली। इस स्कूल के तहत चलने वाली आंगनवाड़ी के तकरीबन 102 तलबा को पहली जमात में दाखिला दिया गया, जबकि समर कैंप के ज़रिए इन बच्चों को पहली जमात के निसाब के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ताहम इस मौके पर यह बात भी सामने आई कि अगर स्कूल में क्लासरूम्स और अमले में इजाफा किया जाए तो अतराफ की बस्तियों में दाखिले का इंतज़ार कर रहे मज़ीद तलबा को भी यहाँ एडमिशन दिया जा सकता है। इसलिए मुतालबा किया जा रहा है कि इंतज़ामिया इस सिलसिले में ठोस कदम उठाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा सके। आज आपल्या शाळेमध्ये एक पाऊल पुढे हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे आणि या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहून मला एवढा आनंद झालेला आहे की हा प्रवेश उत्सव नसून हा एक महोत्सव आहे, एक मेळावा आहे, एक जत्रा आहे असं वाटायला लागलं। कारण जवळजवळ 108 पालक आणि विद्यार्थी इथं उपस्थित होते। अक्षरशः त्यांना रांगा लावून टोकन दिलेले होते, एवढी गर्दी झालेली होती। हे टोकन देण्याची पद्धत इलेक्शन ड्युटीमध्ये पाहिलेली आहे आम्ही। ज्यावेळेस मतदानाची वेळ संपते त्यावेळेस हे राहिलेल्या मतदारांना टोकन दिले जाते। इथे तर सुरुवातीपासूनच टोकन दिलेलं होतं, त्यामुळे खूप खूप आनंद झाला। आपल्या मनपाच्या 50 शाळांमध्ये हा उपक्रम चालू आहे, पण ही स्थिती नगण्य आहे अशी शाळेची। फक्त एकमेव शाळा नारेगाव असेल आणि किराडपुरा, फक्त दोनच शाळा आहेत जिथं प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या रांगा लागतात। तर ह्या कामासाठी सर्व श्रेय आदरणीय रईसा बाजी यांना जाते, कारण सर बाजी आप नहीं रहते तो ये इतना ये स्कूल का विकास नहीं होता था। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि आपके पहले की जो हालत थी वो हमको मालूम है। इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपका बहुत बहुत आभार। आपण आज एक पाऊल पुढे हा प्रकल्प आदरणीय आयुक्त साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व महानगरपालिकेच्या एकूण 50 शाळेमध्ये घेत आहोत। आणि या प्रकल्पाचा उद्देश असा आहे की जो प्रवेशोत्सव 15 जून रोजी होतो आणि त्यानंतर पहिलीचा वर्ग सुरू होतो, तर आपल्या महानगरपालिका एकमेव महानगरपालिका अशी सर की 2 महिने अगोदर आपण प्रवेश आज करून घेतले आणि उद्यापासूनच लगेच पहिलीचा वर्ग सुरू होणार आहे आणि 30 एप्रिलपर्यंत यांचा वर्ग चालणार आहे। म्हणजे या विद्यार्थ्यांची पहिलीची तयारी आपण याच एप्रिल महिन्यामध्ये करत आहोत। अशी एकमेव महानगरपालिका आपली आहे जे की आपण अगोदर प्रवेश करतोय आणि त्यांचे लगेच वर्ग सुरू करतोय। परत या विद्यार्थ्यांना समर कॅम्पचा सुद्धा आपण उपयोग करून देणार आहोत। आपण 23 ते 30 एप्रिलच्या दरम्यान समर कॅम्प घेणार आहोत। तसेच या विद्यार्थ्यासाठी आवश्यक असलेल्या ज्या सुविधा आहेत, भौतिक सुविधा आहेत, यांना लागणारी पुस्तकं असतील, गणवेश असेल, हे सुद्धा आपण याची लगेच तात्काळ मागणी करून यांना देण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत। आज महानगरपालिकेच्या एकूण 50 शाळेमध्ये जे बालवाडीतले जे प्रवेशपात्र विद्यार्थी आहेत 1251 विद्यार्थी प्रवेश पात्र आहेत आणि या 1251 विद्यार्थ्यांचा प्रवेश आज आपल्या महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये होतो। आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि हमारे पेरेंट्स जो है तो जागरूक हो गए हैं कि जैसे हमने बच्चों के ग्रुप्स पर ये जो है तो मैसेज डाला था कि आज जो है तो बच्चों का एडमिशन कर लिया जाएगा, तो माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि तमाम पेरेंट्स ने जो है तो बहुत ही जोश और खरोश के साथ आज के इस जो है तो एडमिशन प्रोसेस में अपना हिस्सा लिया और वो तकरीबन 1-1.5 घंटे से जो है तो लाइन में खड़े रहकर जो है तो अपने वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब जाकर अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पर करवाएं। तो ये सारा श्रेय जो है हमारे महानगर पालिका को जाता है कि महानगर पालिका
कि स्कूल जो स्मार्ट हो चुके हैं और जहाँ पर जो क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है, ये उसका सबूत है कि आज जो है तो महानगर पालिका के स्कूल में लोग अपने बच्चों का एडमिशन कंफर्म करने के लिए लाइन लगाकर, टोकन लेकर, अपने वक्त का इंतज़ार करके जो है तो यहाँ पर अपने बच्चों का दाखिला जो है तो फिक्स करवाना चाह रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं तमाम जो है तो हमारे आने वाले मेहमानान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि बच्चों के इस कार्यक्रम में वो वक्त निकाल कर आए और बच्चों की हिम्मत अफजाई की, पेरेंट्स की हिम्मत अफजाई की और हमारे स्कूल को रौनक बख्शी। इसी के साथ साथ मैं जो है तो अपने जो सरपरस्त हजरात हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल पर भरोसा किया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक दौर ऐसा था कि कॉर्पोरेशन के स्कूल्स पर से पेरेंट्स का भरोसा उठता जा रहा था, लेकिन अभी आज ये हालत है कि हमारे पास में हमको एडमिशन क्लोज का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। इसके पीछे जो है तो हमारे माननीय आयुक्त जो जी श्रीकांत सर हैं, उनकी जो है तो संकल्पना थी, उनका विजन था, उनके साथ में पूरी हमारी एजुकेशन की टीम थी जिसने उनको सपोर्ट किया और आज उसके नताइज हमको देखने मिल रहे हैं और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी हमारे स्कूल्स ऐसे ही चलेंगे। ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर में ज़ेर तालीम 9वीं और 10वीं के तलबा के लिए क्रिएटिव पॉज के उन्वान से एक वर्कशॉप रखा गया, जहां मारूफ साइंसदां श्रीकांत क्लोरकर ने उनकी रहनुमाई की। गारखेड़ा इलाके में वाक़े ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर में मारूफ साइंसदान डॉक्टर श्रीकांत क्लोरकर की रहनुमाई में नौउम्र तलबा के लिए क्रिएटिव पॉज मौजू पर एक मालूमाती वर्कशॉप नहायत जोश खरोश के साथ मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम के आगाज़ में माहिर तालीम SP जवड़कर ने डॉक्टर क्लोरकर का तारुफ पेश किया, जबकि स्कूल की जानिब से तलबा ने उनका इस्तकबाल किया। वर्कशॉप से खिताब करते हुए डॉक्टर क्लोरकर ने कहा कि तलबा की शख्सियत की तरक्की सही उम्र में होना है, हद ज़रूरी है। उन्होंने ज़ोर दिया कि तलबा को अपने काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए और उनमें मुताले की आदत परवान चढ़ानी चाहिए। उन्होंने जिस्मानी सतह पर अच्छी आदत अपनाने, जहनी दबाव कम करने और आपसी ताउन का जज्बा पैदा करने के हवाले से भी रहनुमाई की। उन्होंने मज़ीद कहा कि जहनी और फ़िक्री तरक्की के लिए हर तालिब इल्म में मौजूद बेपनाह सलाहियतों का इस्तेमाल कम उम्री से ही शुरू होना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने अमली मुज़ाहरा करते हुए तलबा की रहनुमाई की। इस मौके पर उन्होंने करम के उसूल, अखलाक़ी अक़दार, नाकामी से सीखने के तरीक़े, सांस पर काबू पाने की टेक्निक और गुस्से पर कंट्रोल पाने के तरीक़ों पर तफसीली रोशनी डाली। तलबा से उनकी शख्सियत साजी के लिए एक मंसूबा भी तैयार करवाया गया और ख़ुद एहतसाबी के तरीक़े भी सिखाए गए। प्रोग्राम के अख्तिताम पर काका जाधव ने इजहार तशक्कुर पेश किया, जबकि इस कामयाब इनेकाद के लिए प्रशांत मेरठ और प्रदीप मापारी ने अहम किरदार अदा किया। मजमूई तौर पर 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए ये वर्कशॉप नहायत मुफीद और मौसर साबित हुआ। मी कसं झोपते, कसंही अस्ताव्यस्त झोपते, मला ती झोप लागत नाही, मला शांत झोप लागते, मी छान झोपते। तुमचं काय मत आहे तुमच्या झोपण्याबद्दल? लिहिता येईल? विचार करा, तुमचं झोपणं कसं आहे, काय विचार करायचा? म्हणजे मी याची झोपण्याची पद्धत चांगली आहे, मला झोपण्याची पद्धती चांगलेपणा आणावं लागणार आहे, नाही मला झोपण्याची पद्धत माझी थोडी चुकीची वाटते। जर 12 आणि 1 वाजता जर आपण टीव्ही हे स्क्रीन पाहत झोपत असू, मोबाईल म्हणा किंवा टीव्ही, मग आपल्याला काय करता येईल? स्वच्छ भारत मिशन के तहत सुशीला देवी कॉलेज में आज एक बेदारी प्रोग्राम रखा गया, जहां माहिरीन ने कॉलेज स्टूडेंट्स को सैनिटेशन एक्ट से मुताल्लिक़ आगाह किया। मेयर की हिदायत पर शहर में शहरियान में सफाई से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत सुशीला देवी महाविद्यालय में आज एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान तलबा को घरेलू कचरा यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गई। इसके अलावा तलबा को सफाई की हलफबरदारी दिलाई गई और साफ सुथरा माहौल बरकरार रखने की अहमियत उजागर की गई। अप्रैल 2026 से नाफिज होने वाले नए वेस्ट सेग्रीगेशन कचरा दर्जाबंदी उसूलों के मुताबिक कचरे को 4 डस्टबिन यानी गीला, खुश्क, खतरनाक और सैनिटरी वेस्ट इन ज़मरों में अलग अलग जमा करने के बारे में भी मालूमात दी गई। इस इक़दाम के ज़रिए तलबा में सफाई और कचरा मैनेजमेंट के हवाले से बेदारी पैदा की गई।
शहर में गंदगी फैलाने वालों को डिसिप्लिन सिखाने की गर्ज से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है और खातियों से बड़े पैमाने पर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। इस कार्रवाई के दौरान साई रसवंती में कचरा बराह रास्त मेन रोड पर डाले जाने पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। नासिक सेल पर 5000 रुपये, हाथ गाड़ी पर प्लास्टिक पाबंदी की खिलाफवर्जी करने पर 500 रुपये, वैशाली पान टपरी पर सड़क पर कचरा फेंकने पर 500 रुपये और अमोल ऑटो पर गैरेज का सामान सड़क तक फैलने पर 1000 रुपये जुर्माना किया गया। इसी तरह शरद होटल के सामने भी कार्रवाई की गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक ये तमाम कार्रवाइयाँ सफाई क़वानीन की खिलाफवर्जी की वजह से की गई हैं। ये कार्रवाई सफाई इंस्पेक्टर रोहित गायकवाड़ की क़यादत में अंजाम दी गई, जिसमें म्यूनिसिपल अहलकार सुधाकर सोनोने, प्रशांत मस्के और दीगर अमला शामिल था। इस मौके पर IEC टीम के ज़रिए शहरियों में बेदारी भी पैदा की गई। शहरियान से अपील की गई है कि वो कचरे को गीला और खुश्क 2 अलग अलग डस्टबिन में तकसीम करें और शहर को साफ़ सुथरा रखें। किराड़पुरा ब्लॉक नंबर 12 की हदूद में वाटर सप्लाई और सफाई इंतज़ामात फौरी दुरुस्त किए जाएँ। बसूरत दीगर 17 अप्रैल को रास्ता रोको एहतजाज किया जाएगा। ये इंतबाह MIM के सीनियर कायद हाजी इसाक खान ने दिया है। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम उन्होंने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को दिया। ये इत्तला उन्होंने बज़ात खुद MCN को दी। हाजी इसाक खान ने बताया कि इस सिलसिले में म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को एक मेमोरेंडम भी दिया गया है। हाजी इसाक खान के मुताबिक पहले किराड़पुरा वार्ड में सफाई और पानी सप्लाई के इंतजामात बहुत बेहतर थे, लेकिन अब किराड़पुरे के साथ रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी और शरीफ कॉलोनी को भी शामिल कर लिया गया है और ब्लॉक नंबर 12 बनाया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नए शामिल किए गए इलाकों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है और बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद इंतज़ामिया मसाइल हल करने में नाकाम रही है। उनका कहना है कि अगर 15 अप्रैल तक इन मसाइल को हल नहीं किया गया तो 17 अप्रैल को रास्ता रोको तहरीक शुरू की जाएगी। कल एक वाकया सामने आया कि वहाँ के लोगों ने कुछ मीडिया को बुलाए और उनकी बात सही है, उनसे कोई मेरी नाराज़गी नहीं है क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा करके प्रॉब्लम है। अब हमारी बात रही प्रशासक से लड़ने की, तो आज मैंने महानगर पालिका आयुक्त जो अभी नए आए हुए उनको एक लेटर दिया, पुलिस प्रशासन को लेटर दिया और मैंने ये मांग की किराड़पुरे के अंदर जो गली नंबर 2 और किराड़पुरे के जो बेकरी जमील बेकरी का जो एरिया है और ये शरीफ कॉलोनी किराड़पुरे का जो एरिया है अरफात मस्जिद के पास का, यहाँ पानी की थोड़ी यानी तकलीफ है। उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा, कुछ एरिया में गंदा पानी आ रहा, बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा। अगर ये 15 तारीख तक ये मसले सॉल्व नहीं हुए तो हमने 17 तारीख को आज़ाद चौक के ऊपर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रास्ता रोको आंदोलन हमने एक आह्वान किए और एक हुकार भर रहे हैं मजलिस इत्तेहाद की तरफ से। इसके अंदर किराड़पुरे के पूरे प्रभाग के लोग, किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, नेहरू नगर और इसके आसपास के जितने लोग हैं वो सब उसमें शामिल होंगे। और अगर ये रास्ता रोको होता है तो इसकी पूरी जवाबदारी प्रशासक की रहेगी। इसलिए आप अगर 15 तारीख से पहले हमारा किराड़पुरे का मैदान जो है पानी के बम्बे के पास का, ये अगर पूरा कचरा क्लियर अगर हो जाता और ये पानी पूरा पानी का मसला अगर क्लियर होता तो हम इन लोगों का शुक्रिया अदा भी हम करेंगे। या तो उन्होंने तो हमारे खुलेआम हमको धमकी दी, हमारे पूरे कारपोरेटर को, विरोधी पक्ष के कारपोरेटर को जितने भी है, कि उन्होंने कहा कि भाई छत्रपति संभाजी नगर बोलो तो आपको हम निधि देते। अरे मेरे भाई, निधि इनके घर की नहीं है, निधि जो ये औरंगाबाद की जो जनता है 15 लाख लोग ये टैक्स पे है, महानगर पालिका को टैक्स देते, कोई किसी के घर से निधि नहीं दे रहा। उसके बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुन रहे तो हम प्रशासक को ये बोलते कि हम हाउस में भी लड़ेंगे और रास्ते रोड पे भी लड़ेंगे, ये हमारा हक है। अगर आप हमारे को सुविधा नहीं दे रहे, पानी सही तरीके से नहीं दे रहे, जो 13 दिन को 12 दिन को पानी आ रहा, मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ पे आके इलेक्शन से पहले ये वादा करे थे और ओपनिंग करे थे कि हम इतना TMC पानी दे रहे करके, तो वो TMC इतना TMC पानी दे 23-25 TMC पानी था, वो कहाँ चले गया। आज मुख्यमंत्री साहब ने इसको 6 महीने हो गए ओपनिंग करके, आज तक औरंगाबाद को, पुरानी औरंगाबाद को पानी 13 दिन 14 दिन को पानी आ रहा। औरंगाबाद ज़िला परिषद की मुख्तलिफ ज़ैली कमेटियों पर अराकीन की नामजदगी के लिए आइंदा 17 अप्रैल को खुसूसी जनरल मीटिंग मुनक़िद की जा रही है।
یہ اطلاع متعلقہ انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ ضلع پریشد انتخابات کے نتائج آ جانے کے بعد صدر اور نائب صدر کے عہدوں کا انتخاب مکمل ہو چکا ہے اور اب سب کی نظریں ذیلی کمیٹیوں کے اراکین کے انتخاب پر مرکوز ہیں۔ قانون کے مطابق صدر اور نائب صدر کے انتخاب کے 1 ماہ کے اندر ہی یہ عمل مکمل کرنا لازمی ہوتا ہے، اسی لیے انتظامیہ نے اس عمل کو تیز کر دیا ہے۔ 2 اپریل کو بعض ذیلی کمیٹیوں کے چیئرمین کے عہدوں کے لیے انتخابات منعقد ہوئے، جن میں بالاجی سونٹکے، میناکشی پوار، سچن گروڑ اور انیتا موٹے منتخب ہوئے ہیں۔ سماج کلیان کمیٹی کی صدارت بالاجی سونٹکے کے پاس گئی ہے، جبکہ خواتین و اطفال بہبود کمیٹی کی صدارت میناکشی پوار کو دی گئی ہے۔ 15 اپریل کو ہونے والی خصوصی جنرل میٹنگ میں تمام کمیٹیوں کے چیئرمین اور اراکین کا حتمی انتخاب کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر 10 کمیٹیوں کے لیے 63 اراکین منتخب کیے جانے ہیں، جس کے باعث سیاسی ماحول خاصا گرم ہو گیا ہے۔ جالنہ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر میں خصوصی مہم چلائی گئی اور ایک علاقے سے دن بھر میں تقریباً 3 ٹن کچرا اٹھوایا گیا۔ اس مہم کا جائزہ خود میئر وندنا مگرے نے لیا۔ روڈ سویپنگ مشینوں کی مدد سے سڑکوں اور ڈیوائیڈر پر جمع کچرے کو صاف کیا گیا۔ اس دوران تقریباً 2.5 سے 3 ٹن کچرا ہٹائے جانے کی اطلاع ہے۔ جالنہ میونسپل کارپوریشن کے صفائی شعبے کی جانب سے نوتن وساحت زون میں یہ خصوصی مہم چلائی گئی، جس میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مجسمے سے بھیم راج گیٹ اور امبڑ چوک تک کے مرکزی راستے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس دوران سڑکوں کے کناروں پر جمع کچرا، گرد و غبار اور گندگی کو مکمل طور پر صاف کیا گیا۔ اس کے علاوہ انا بھاؤ ساٹھے اسمارک، فلائی اوور کے نیچے کا علاقہ، مکتیشور تالاب اور پاٹھک منگل آفس کے اطراف بھی صفائی کی گئی۔ میونسپل کارپوریشن کی 3 روڈ سویپنگ مشینوں کے ذریعے سڑکوں اور ڈیوائیڈرز کی صفائی کی گئی، جس کے نتیجے میں تقریباً 2.5 سے 3 ٹن کچرا ہٹایا گیا۔ اس موقع پر میئر وندنا مگرے نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے گھروں میں نکلنے والا کچرا ادھر ادھر نہ پھینکیں، بلکہ گھنٹا گاڑی میں ہی ڈالیں اور شہر کو صاف رکھنے میں انتظامیہ سے تعاون کریں۔ اس مہم میں اشوک انا پانگرکر، ویجو جادھو، صفائی انسپکٹر ارون وانکھیڑے، شراون سراٹے سمیت صفائی کارکنان نے حصہ لیا۔ आज जालना प्रभागामध्ये सकाळी 5 वाजेच्या दरम्यान 10 स्वीपर व्हॅन स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली। या मोहिमेमध्ये आंबेडकर पुतळ्यापासून भीमराज मुख्य प्रवेशद्वार, आंबड चौफुली तो दोन्ही भागातील स्वच्छता करण्यात आली। तिथून समोर अण्णाभाऊ साठे पुतळा, मुक्तेश्वर लॉन्स, पाठक मंगल कार्यालय असे या भागात स्वच्छता करण्यात आली। या गाडीत किमान 3 टन कचरा ओढून घेण्याची क्षमता आहे आणि 10 लिटर डिझेल लागते। स्वच्छतेत यामुळे जास्त वेळेचाही कमी वेळ लागतो आणि स्वच्छतामुळे सर्व रस्त्याच्या दुभाजकावरील जो कचरा आहे तो काही 1 तासातच पूर्ण स्वच्छ होतो व या स्वच्छतेमुळे जालना शहर कसे स्वच्छ आणि सुंदर होईल यात भर पडत आहे। तालुका पैठन के टाकली अंबड़ गांव में सनीचर की निसफ शब को नामालूम चोरों ने एक जेवरात की दुकान में नकब लगाई और वहां से 75,000 रुपये मालियत के जेवरात चुरा लिए। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक पैठन तालुके के टाकली अंबड़ गांव के जेवरात के ताजिर युवराज सुभाष बागड़े की समृद्धि ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। हफ्ते की रात रोज़ाना की तरह कारोबार ख़त्म करके बागड़े दुकान बंद करके घर चले गए थे। आधी रात के करीब नामालूम चोरों ने दुकान के शटर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और दुकान में मौजूद तकरीबन 10 ग्राम 600 मिलीग्राम वजनी सोने का हार, जिसकी मालियत तकरीबन 75,000 रुपये है, चुरा लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही शिकायत कुनिंदा बागड़े ने पाचोड़ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन पंडित, सब इंस्पेक्टर बिरविजय होबड़े और जमींदार किशोर शिंदे फौरन मौके पर पहुंचे और पंचनामा किया। साथ ही औरंगाबाद से डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट माहिरीन को भी तलब किया गया। मजीद बरां मकामी क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर विजय सिंह राजपूत और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर पवन एंगड़े की टीम ने भी मौके का मुआयना किया और तफ्तीश शुरू कर दी है। पीर यानी 6 अप्रैल को युवराज सुभाष बागड़े की शिकायत पर पाचोड़ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर।
सिडको N12 इलाके में मौजूद कचरा ट्रांसफर सेंटर को बंद करने के मुतालबे पर साबिक MP और MIM के कारपोरेटर्स ने किया जोरदार एहतजाज। मेयर के समझाने के बावजूद मुजाहरा करने पर मुजाहिरीन के खिलाफ 353 के तहत कार्रवाई का मेयर ने दिया इंतबाह। गोंदूगिरी को बढ़ावा देने वाले 39 अरकान असेंबली के खिलाफ CPI-M ने खोल दिया मोर्चा। क्रांति चौक इलाके में किया जोरदार मुजाहरा और मुताल्लिका MLA से किया इस्तीफे का मुतालबा। जालना म्यूनसिपल जनरल बॉडी की मीटिंग में हुआ खूब हंगामा। बीजेपी के कारपोरेटर अक्षय गोरंटियाल और शिवसेना के कमलेश खरे आए आमने सामने। मामला रफा दफा करने डिप्टी मेयर को छोड़ना पड़ा डाइस। मेयर मीटिंग मुलतवी करने पर हो गई मजबूर। और एक कदम आगे मुहिम के तहत आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में आंगनवाड़ी के तलबा को दिया गया अव्वल जमात में दाखिला। अतराफ की बस्तियों के साकिनान भी अपने बच्चों का यहाँ एडमिशन करने लगे हैं जिद। इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।